welcome to Fam Health. The healthcare crisis we've been living through has highlighted an urgent need to find different and innovative ways to connect people to heart health. This year, World Heart Day's mission is to use the power of digital health to improve awareness, prevention, and management of CVD globally and to continue to use Heart to Beat CVD. Use Heart to Connect is about using your knowledge, compassion, and influence to make sure your loved ones and the communities you're a part of has the best chance to live heart healthy lives. Today, to talk about how to manage this and make people more aware, especially in the light of the recent pandemic, we have with us super specialist Dr. Brian Pinto, who is the head of cardiology and an interventional cardiologist at Holy Family Hospital and the pioneer in transradial angiography and angioplasty in the country. Dr. Pinto, welcome to Fam Health and thank you for making time for us today. Thank you so much, and thank you for having me on your show, Vaishali. Thank you. Dr. Pinto, first and foremost, I have to make a reference to the recent pandemic. Post the second wave, though it has gone and most of us have now learned kind of how to live with the pandemic, a lot of conversations were happening about comorbidities and why and how people lost their lives and they were in severe conditions when they had heart conditions. So, what is the new learning from that now, and what would you advise people to do? This clearly COVID-19 has changed the lives of people all over the world. It has possibly shaken all of us, like the Spanish flu did 100 years back. You must remember that in the Spanish flu, we lost 50 million people in a population of 1.8 billion people, and 14 million people belong to undivided India. So you can imagine the pandemic 100 years back. We're living the same thing, but we have better tools to fight it this time around. There have been a few million people, again, who have died all over the world. US possibly leads that number. India did extremely well during the first wave. However, we became complacent, I think, a bit. And the second wave hit us in a worse fashion. We had younger people who got affected. I think partly because of the fact that we rolled out the vaccines to the older people. We rolled out the vaccines to the 45 years and above, to the medical health community, and we didn't vaccinate our 18 to 45 years. Maybe that was a thing that we did in the what we thought was right. But I think post the second wave, we've learned to live better. We've realized that people with comorbidities will face worse prognosis. Those who have hypertension, diabetes, heart failure, renal failure were the ones who succumbed in the first wave. And in the second wave, we had the younger people succumbing because they were not vaccinated. Now we've realized that we have to vaccinate as many as possible. And yesterday on the Prime Minister's birthday, we vaccinated 2 crores 24 lakh people, which was a great record and a great thing for India to do. I think we're going forward in the right way. I think we're doing the right things now. But we must all remember that this pandemic has to be treated with serious measures. Still, we need to isolate ourselves, we need to vaccinate ourselves, and we need to understand that we don't have to meet in large gatherings and keep ourselves free from disease. And if you get it, you remember one thing, the herd immunity has already kicked in. 67% of our population already carries the antibodies, and the others are getting vaccinated as well. So it's not going to be as bad as before. It's definitely going to be better, but we still need to take precautions. डॉक्टर पिंटो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा हम कॉन्वर्सेशन हिंदी में लेके जाएंगे. जरूर. सो डॉक्टर पिंटो, ये जो पैंडेमिक हुआ है उसको देखते हुए क्या वी कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि हमें अब हार्ट का जो ध्यान है वो सिर्फ वर्ल्ड हार्ट डे पे या सिर्फ पैंडेमिक के लिए देखना नहीं है, बट इट शुड बिकम हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा, yearly लाइफ का हिस्सा, that we have to take care of our heart. And what would be the tips जो आप हमें देना चाहेंगे? वैशाली, जो आप बोलते वो एकदम सही है. आपने बताया कि ये जो पैंडेमिक ने हमको बताया कि हमें सब जो रिस्क फैक्टर्स है हमारे, हम उनको देखते जाएंगे थ्रू आउट लाइफ. नॉट सिर्फ पैंडेमिक में नहीं, हमें ये मैनेज करना है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल में लेके आना चाहिए. हमको चेक पहला करना चाहिए. 20 साल की उम्र में हम सब लोग को मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं हमें, और क्या है ये ब्लड प्रेशर.
130/90 के ऊपर होगा तो हमें फर्स्ट ग्रेड हाइपरटेंशन है। हमारा अगर हमें चलते समय श्वास लगते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि शायद हमको हार्ट फेलियर है। हमें हमारा शुगर जो है उसका ध्यान होना चाहिए, शुगर ईयरली चेक करना चाहिए। अगर डायबिटिक है तो एवरी 2 वीक्स, डायबिटिक नहीं है तो 1 in 6 months, 6 महीने में करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स वगैरह है वो चेक करना चाहिए। पैंडेमिक में ही नहीं बट अलग से चीज में स्मोकिंग को बंद करना चाहिए अगर स्मोकर है, और एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ महत्व वाली चीजें हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि हम सिर्फ जानकारी नहीं ले, हम उस पर थोड़ा एक्शन लें कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए दवाइयाँ लेना है तो लेना है, ब्लड प्रेशर के लिए लेना है तो लेना है, डायबिटीज। और अगर हम ये 3 बीमारी और स्मोकिंग बंद करें तो हम हार्ट की जो बीमारी होते हैं उसको 90% टक्का से हम कम कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्व चीज है कि रिस्क फैक्टर्स को काबू में लेना, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। ये करने से हमें बहुत फायदामंद चीज है। और हर आदमी को अब उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर सिर्फ है कि नहीं है, नहीं, लेकिन हमारा दवाई लेने के बाद में कंट्रोल में आया कि नहीं वो भी देखना है, कंट्रोल भी देखना है, और उनका जानकारी भी लेना है कि हमें कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के कारण से, मेडिसिन के कारण से, और हम हेल्दी लाइफ लीड करना चाहिए। तो अभी डॉक्टर पिंटो आपने हमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपकी हार्ट की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अब इस बारे से एक और बात निकल के आती है कि अगर हमें अपना ध्यान रखना है तो हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, उसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशंस हमें करने चाहिए टू मैनेज अ बेटर हार्ट कंडीशन, मैनेज आवर ब्लड प्रेशर बेटर? एक चीज हमें करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ये बताता नहीं है, हमको 7 घंटे का नींद लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जन जिम पे जाते हैं, यंग लोग, नींद बिना, 4 घंटे का नींद, 5 घंटे का नींद, उसके बाद में जिम जाते हैं और सडन कार्डियक डेथ होती है। बहुत इसे 40 साल में, 30 साल में आप देखना मिलता है। तो स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज करता है तो वार्म अप करके। तो मैं मेरे मेरे पेशेंट्स लोग को और मेरे जो फ्रेंड्स लोग को मैं बताते हैं कि अगर आप शाम को एक्सरसाइज कर सकेंगे तो वो बेटर है। सुबह में क्या होता है, बॉडी वार्म्ड अप नहीं है, और वार्म्ड अप नहीं है तो टाइम लगता है वार्म अप में, और अगर आपको वो टाइम नहीं है तो आप शाम के टाइम में अगर एक्सरसाइज करेगा तो वो बेटर है, वो बेहतरीन रहता है, वो बेटर रहता है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट बराबर वो रेंज में रहना चाहिए। जो हम 20 to 24 का बीएमआई बोलता है, उसका क्या मतलब है कि उसका हाइट और वेट लेके हम लोग देखते हैं कि ये हाइट और वेट के साथ में हमारा बॉडी वेट और हमारा हाइट के हिसाब से बराबर होना चाहिए तो अच्छा होता है। फिर हमें ये देखना है कि हमारा ब्लड प्रेशर बराबर है, हमारा ब्लड शुगर बराबर है, और हमारा लाइपिड्स बराबर है। ये सब देखने के बाद में, और साइको सोशल स्ट्रेस जो होता है आजकल के तारीख में, बहुत साइको सोशल स्ट्रेस आते हैं। जैसे कोई आदमी घर पे बैठा है, उनके जॉब मिस हो गया है, उनको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, ये सब हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये सब हमको हमको थोड़ा सा ये करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम एक सोशल बीइंग है। तो फोन पे भी आके आप अपना फ्रेंड से बात कर सकते हैं, थोड़ा बाहर जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए जहाँ पे लोग नहीं है। ये एक्सरसाइज, ये डाइट, बराबर न्यूट्रिशन, ये सब करने से हम हमारे हेल्थ कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारे शुगर्स, हमारे लिपिड्स, हमारे ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में है, तो चांसेस हमारा अच्छा होता है कि हार्ट की कंडीशन ना हो जाए। डॉक्टर पिंटो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, और आज आप आए, आपने अवेयरनेस बढ़ाया, और आपके थ्रू मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने ऑडियंस को, दर्शकों को, कि एक दिन या एक पैंडेमिक के लिए अपने हार्ट को मत देखिए, बट पूरे साल, पूरे जिंदगी के लिए देखिए हार्ट को। इट इज द वन वन ऑर्गन इन योर बॉडी दैट will need to be pumped the rest of your life. So please be careful and take care of yourselves, and wishing everybody a very, very happy World Heart Day. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर।
और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।